I think we have connected Manishar. Manishar has joined. Sir, good evening. Sir, your video has to be on. Welcome you to the wonderful session which we are expecting since long. Dear all educators and parents, we are having Mr. Manish Sharma, the founder and president of The Parenting Coach and the Career Strategist. We are extremely happy to have him today, even though in the earlier days we had Manisha's class with all my school leaders. Earlier it was a wonderful experience when we have joined with him. And today also it's a privilege for all my parents. You know, we have taken up a few sections parents today, Manishar, and I think how effectively the parents, they need to nurture their kids. It may be a teenage child, it may be an an adolescent child, but I want there is should be a brief structure about how parents need to work it out, this 21st generation children. It's not those children the days when we were studying at that time, so that they are going to listen everything. But now in this technological era, as everyone in WhatsApp and everyone in Facebook, and even in the few days back, we were not allowing our kids to use WhatsApp, and we were not giving the mobile phones. But now we are asking to take the kids these mobile phones and have the classes and all. So this is something, situation demands, and parents also need to work it out how effectively they will guide these children in the days to come. So dear parents, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इस सेशन में जुड़े हुए हैं। आज हमारा ये तीसरा पेरेंटिंग सेशन है जो मनीष शर्मा जी के साथ आज है। बहुत ही रिनाउंड हमारे पास सर जुड़े हुए हैं, जो एक कैरियर स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, एक पेरेंटिंग कोच में हैं। और आप उनसे आज सुनने के बाद आपको जरूर लगेगा कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको अपने कार्य में, अपने दिन ब दिन काम में जब आप बच्चों को डील करते हैं, उनको किस तरह से सक्सेसफुली डील कर पाएंगे। बच्चे आपके सुनते नहीं है, बच्चे आपके मोबाइल में रहते हैं, बच्चे आपको बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं। ऐसे कुछ कंसर्न इश्यूज हैं जो जनरल इश्यूज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष सर को टोटली आपको ऐसे बचाएं, और आखिरी में जरूर 10 मिनट टाइम मिलेगा। अगर कुछ भी प्रश्न है इसके बाद मनीष सर जो कवर नहीं कर पाए, वो आप जरूर उस प्रश्न को आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैट बॉक्स से देख के हम जरूर इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एज वेल एज Manish sir to this forum. Over to you, Manish sir, for your session. Thank you, sir. Thanks, Atan. Thanks, Dr. Nayak. Dr. Saab, I just want to know what exactly is the classes the parents came from. Which all classes? They are from mixed classes, you can say. We have taken up few parents from each class. Each class, okay. So yes. I'll keep it mixed. And another thing which I want to know, because I can go, shall I keep it relevant to what is going on today at this point of time, or shall I keep some general topic, because this is quite exhaustive? So we can choose something which is going on screens, digital parenting, and something which is like managing routine of their child right now in these days. Yes. Managing routine. Okay, so I'll talk about two aspects right now. So right, sir. Thank you. Thanks, Atan. Now I'm going to share one screen with all, and if you can be bilingual, sir. You can be bilingual. No problem. That was I was about to ask. Sir, you allow me for screen sharing? Yes. Just a minute. Done, sir. Kindly check. Not, sir. Not done yet. Not done? There are two profiles actually. Both, if you allow both.
Yeah, thank you, sir. Thanks a ton. Right. So any point of time, parenting in digital age is absolutely different. और हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि इस दौर में जब सब कुछ स्क्रीन पे है, एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन, हाउ वी कैन कीप थिंग्स इंटैक्ट, like especially the behavior of child, the development of brain of child, how we can keep things intact. There is other aspect to it कि जब सब कुछ स्क्रीन पे है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा गलत मूव की तरफ चला जाए और हम उसे देख ही ना पाए. और हर एज में, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, ये चैलेंजेस डिफरेंट हैं. बट कहीं ना कहीं डिजिटल जो स्क्रीन्स हैं, डिजिटल एप्स, मोबाइल स्क्रीन्स, एंड इन एनी वेज हर एज में कहीं ना कहीं कैप्चर कर चुके. इवन एक 1.5 साल का बच्चा भी टीवी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं डिजिटली कनेक्टेड है. अब कनेक्टेड है तो क्या देख रहा है, कितना देखेगा, देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर देयर विद पेरेंट्स इन दिस एज. और आजकल जो दौर अब चल रहा है ये बिल्कुल डिफरेंट है. इसने और ज्यादा इस चीज को बढ़ा दिया है. एक दौर तो था जो प्री कोविड था, जहां पर डिजिटल ने बहुत स्ट्रांगली प्लेस कर लिया, स्क्रीन ने अपने आप का बहुत बड़ा अपनी एक जगह बना ली. और अब जब सब कुछ बंद है, अभी सब कुछ स्क्रीन पे है. सो व्हाट वाज रेलेवेंट यस्टरडे मे नॉट बी रेलेवेंट टुडे. हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा एज अ पेरेंट. अब जो नया नॉर्मल पेरेंटिंग में है, आई विल बी ट्राइंग टू टॉक ऑन दोज एस्पेक्ट्स. पहले तो आप में से कितने पेरेंट ऐसे हैं जो मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जिनको इस समय डर या वरी है कि बच्चे स्क्रीन पे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं स्क्रीन, इनकी आंखों पे इंपैक्ट पड़ रहा होगा या ब्रेन पे इंपैक्ट पड़ रहा होगा. कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो वरीड हैं? से यस इन द चैट बॉक्स. यस लिख दीजिए, मेरे को पता चल जाएगा. good number of parents those are worried about it. तो इन डिफरेंट एजेस बच्चों का स्क्रीन के साथ जो नाता है या जो उनका देखना है स्क्रीन पे, इट इज डिफरेंट. इफ यू सी टॉडलर्स, दे आर मोर प्रो टुवर्ड्स कार्टून्स, राइट, फॉर दीज राइम्स एंड ऑल. अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है तो वो अलग प्रोग्राम में चला जाएगा, और जैसे ही उसकी स्क्रीन का नाता डिफरेंट बदल जाएगा, और जो उससे भी बड़ा हो गया वो कहीं और है, उसको कुछ और चाहिए. यस और नो, ऐसे ही कुछ बड़े को कुछ और चाहिए, ऐप चाहिए, उसे गेम चाहिए, उसे फेसबुक चाहिए, उसे इंस्टा चाहिए, उससे छोटे को वीडियो गेम्स चाहिए, सॉन्ग्स चाहिए, और उससे छोटे वाले को कार्टून चाहिए. बट स्क्रीन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उसके. बट एनीवे सबसे बड़ी टेंशन ये है कि स्क्रीन क्या ब्रेन पे क्या इंपैक्ट कर रही है. मैं आपको दो एस्पेक्ट बताऊंगा, ये दोनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन स्क्रीन का इस समय बच्चे के दिमाग पे और उसकी आंखों पे क्या इंपैक्ट है. देयर आर टू एरियाज जहां पर ये स्क्रीन्स इंपैक्ट कर रही हैं बड़े वे में. एक उसकी आंखों पे और दूसरी उसके दिमाग पे. और थर्ड एंगल टू इट इज कि वो इतना स्क्रीन से ग्लूड है कि वो अपने प्राइम टाइम को मिस कर रहा है. प्राइम टाइम जिस टाइम पे उसे पढ़ना है, प्राइम टाइम जब उसे किसी प्रिपरेशन करनी है किसी एग्जाम की, वो उसे भी मिस कर रहा है. बट इन एनीवेज दो मेजर जो पॉइंट्स हैं वो है उनकी आंखों पे उसका इंपैक्ट और उनके दिमाग पे. अब दिमाग पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? दिमाग पे सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि उनका ब्रेन वॉलेटाइल हो जाता है. वीडियो गेम्स जब वो खेलते हैं या कोई ऐसी 3D व्यू एंगेजमेंट में चले जाते हैं जहां बहुत फास्ट वीडियोस चल रहे हैं, बहुत तेज गेम चल रही है, बहुत तेज कार्टून चल रहा है, बहुत तेज मूवी चल रही है, बहुत फास्ट हो रहा है, चीजें एकदम स्क्रीन बदल रही है, एकदम घूम रही है स्क्रीन, वहां चाइल्ड्स ब्रेन गॉट वॉलेटाइल. बहुत ज्यादा ब्रेन वेव्स में वॉलेटिलिटी आ जाती है. इतनी आ जाती है कि दे आर अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन वन टास्क. वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. अगर आप खुद एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ऐसी कोई गेम खेलिए जिसमें कोई लड़ाई हो, जिसमें कार रेसिंग हो, फ्री रन गेम हो, एक बार प्ले करके देखिए. जब आप उसे देखेंगे, आप उस 15 मिनट गेम खेलने के बाद आपके यहाँ पर हीट बढ़ जाएगी. यहाँ पे यू विल रियलाइज कि यहाँ कुछ तेज चल रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है. और उस 15 मिनट के बाद अगर एकदम गेम छोड़ने के बाद अगर आप कोई भी किताब उठा लेंगे, आप किताब पे आपकी निगाह नहीं टिकेगी, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे किताब पे. चाहकर भी, इवन आपकी फेवरेट बुक भी उठाएंगे तो भी आप उसे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज बुक रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए जो स्टेबिलिटी चाहिए ब्रेन वेव्स की, वो अभी नहीं है. बिकॉज व्हेन यू प्ले दोस गेम्स, द ब्रेन वेव्स आर वेरी वॉलेटाइल. इट्स नॉट स्टेबल. व्हेन इट्स नॉट स्टेबल, you are unable to concentrate on one task. So
बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब भी वो कोई फास्ट गेम 3D व्यू गेम खेलता है तो वो एकदम एग्रेसिव हो जाता है, उसका ब्रेन वॉलेटाइल हो जाता है, एंड बिलीव मी उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट उसकी कंसंट्रेशन पे है, वो चाह के भी नहीं पढ़ पाएगा। सारी वो एक्टिविटीज जिसमें कंसंट्रेशन चाहिए वो सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। चेक। अगर आपका बच्चा किसी भी वीडियो गेम में बहुत ज्यादा इंडल्ज है और वो वीडियो गेम वो है जिसमें स्क्रीन एकदम घूमती है, जैसे टेम्पल रन, सबवे सर्फर, पबजी, दिस व्हाट यू कॉल इट, दिस वाइस जीटीए वाइस सिटी, these car racing game, bike racing game, helicopter games, Clash of Clans, and a lot of games are there, WWE Raw, all these games when they play the brain get aggressive in terms of यहाँ brain waves बढ़ जाएंगी, और that way उनका जो जो काम हमारी रूटीन के ठहराव चाहते हैं, कामनेस चाहते हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इन गेम्स का एक और इम्पैक्ट है कि आपको रिफ्लेक्सेस बहुत तेज चाहिए इसके लिए। अब छोटे बच्चों के ऊपर बताता हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो बच्चे जिनकी एज 5 साल से लेके 8-9 साल के बीच है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताता हूँ। अब ये बच्चे वो हैं जिनकी लाइफ में कुछ स्लो काम भी हैं, स्लो रिफ्लेक्सेस एक्टिविटीज भी हैं, और उनको इतने स्पीडी रिफ्लेक्सेस की जरूरत नहीं है। जब आप ये गेम खेलते हैं तो ये गेम एकदम घूमती है स्क्रीन, कभी इधर लेफ्ट, कभी राइट, कभी सीधा, कभी जंप, सो दे हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ गेम। तो उनके रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है तेज 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 करने की। अब जितने भी स्लो एक्टिविटीज रूटीन की हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब आप बताइए कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर आपके बच्चे को एक ठहराव चाहिए करने के लिए, वो काम रूटीन की बच्चे की कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए ठहराव की जरूरत है, बताइए। लिख दीजिए एक बार ग्रुप में, व्हाट्सएप, उस पे चैट बॉक्स में। आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी चीजें जहां पर आपका बच्चे का ठहराव चाहिए, उसका दिमाग, उसकी बॉडी टिकी होनी चाहिए वो काम करने के लिए रूटीन के। रीडिंग, वेरी गुड ईशू जी, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग के लिए ठहराव चाहिए, गुड। और आप ईटिंग, एब्सोल्युटली पायली, बिल्कुल सही। राइटिंग, गुड गुड, वेरी गुड। राइटिंग के लिए ठहराव चाहिए, एक जगह टिकना पड़ेगा, दिमाग एक जगह लगाना पड़ेगा। ईटिंग के लिए ठहराव चाहिए। ये बच्चे देखिए अब जितने वीडियो गेम्स में होंगे वो जल्दी जल्दी चाहेंगे। रीडिंग नहीं करना, राइट नहीं करना, मुझसे सुन लो। अगर आप बोला अगर लिख के आंसर दो, इनकी क्या होगी टेंडेंसी, मुझसे सुन लो। आप प्रेफरेंस ये है कि सुन लो, मुझसे लिखवाओ मत। क्यों? क्योंकि राइटिंग इज अ स्लो जॉब, डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब हो चुकी है। ईटिंग इज अ स्लो जॉब, जल्दी जल्दी खाना है। उन्हें कई बार ये भी नहीं पता चलता वो खाते क्या है। एंड देयर हैज बीन सो मेनी रिसर्चेस, जो बच्चे मोबाइल पकड़ के खाना खाते हैं, देयर हैज बीन रिसर्चेस जहां उनसे पूछा गया कि आपने क्या खाया बाद में, उन्हें शायद मोस्ट ऑफ द किड्स वर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि उन्होंने अभी खाया क्या था। टेस्ट बड्स तक उनकी हेल्प नहीं करते। स्पीड, ये स्पीड नुकसानदायक है। इसका नुकसान इतना बड़ा है कि भगवान ने आपके बच्चे को ब्रेन जितना मर्जी शार्प दिया हो, जितना मर्जी अच्छा दिया हो, और अगर वो उसका ब्रेन डिस्टर्ब हो गया इन गेम्स के साथ, डेफिनेटली फिर वो ब्रेन चाहकर भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा। अगर वो कंसंट्रेट नहीं करेगा तो इनपुट सही नहीं मिलेगी, इनपुट नहीं मिलेगी तो आउटपुट कहां से देगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट 12 साल से पहले इन 3D व्यू गेम्स में बिल्कुल इंडल्ज मत कीजिए, रोकिए। और आपको रोकना पड़ेगा बिकॉज नुकसान बहुत बड़ा है। अब मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताने का कि नुकसान है कितना बड़ा। नुकसान इतना बड़ा है कि आपके अगर उसका ब्रेन एक बार डिस्टर्ब हो गया, दे मे नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन टास्क, और जो ब्रेन की एबिलिटी है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। हर काम डिस्टर्ब हो गया, आप फिर कई रीजन ढूंढते हो, इसका रीजन ये होगा, इसका रीजन ये होगा, फाइनली रीजन ये है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। जितनी तेज गेम्स हैं, 3D व्यू वाली हैं, फास्ट, जिनमें एकदम स्क्रीन घूमती है, उन्हें रोकिए। और रादर अगर गेम्स बच्चा खेलना ही चाहता है तो वो गेम्स एनकरेज कीजिए जिसमें कुछ पजल हो, कुछ दिमाग लग रहा हो। 2 डायमेंशनल गेम्स होती हैं, जैसे अनब्लॉक है एक गेम, लिख लो चाहे, अनब्लॉक है। देयर इज गेम कॉल्ड फ्री फ्लो, फ्री फ्लो बहुत अच्छी गेम है। लिमोसिटी है, लिमोसिटी, राइट इट डाउन, अगर कोई लिखते मेरे लिए चैट बॉक्स में। लिमोसिटी एक बहुत अच्छी गेम है। लिमोसिटी अगर आपका बच्चा खेलेगा तो उसका ब्रेन डेवलप होगा। ब्रेनवर्सिटी एक अच्छी गेम है। हिडन ऑब्जेक्ट गेम्स, आप देखो कुछ ऐसी गेम्स आती हैं जिसपे आपको एक मेसी सा रूम दिया होता है, सिचुएशन होती है, यू हैव टू फाइंड आउट सम थिंग्स, वो आपको लिस्ट देते हैं, उन लिस्ट को आपको ढूंढना होता है। और ये गेम्स वो हैं जो आप भी बच्चों के साथ खेल सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को 3D से 2D की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, यू मस्ट प्ले विद दीज गेम्स विद योर चाइल्ड। डेफिनेटली उनकी कंसंट्रेशन भी इंप्रूव हो रही है, उनका लॉजिक भी बढ़ रहा है। फाइंड आउट द डिफरेंसेस, फाइंड आउट द डिफरेंसेस एक ऐसी गेम है
जो हम पता नहीं कब से खेलते आ रहे हैं। अखबार में आता था अंतर ढूंढो, 6 अंतर ढूंढो, 10 अंतर ढूंढो। नाउ दीज आर गेम्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड आईफोन, डाउनलोड दोस गेम्स, बच्चों के साथ खेलिए, काफी एंटरटेनिंग है। एक आप अंतर ढूंढिए, एक अंतर वो ढूंढेगा। जहां जहां वो ध्यान लगाएगा किसी गेम में, वहां वहां उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। जहां जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट है, स्पीड है, राइट, वहां कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही, रादर नुकसान हो रहा है। ये अब आपके हाथ में है कि आप नुकसान करवाना चाहते हैं कि आप डेवलपमेंट चाहते हैं। मींस मैं वीडियो गेम्स के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं उन वीडियो गेम्स के अगेंस्ट हूं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट देती हैं। उनमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके ब्रेन की। अगर उसमें आपके ब्रेन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो ब्रेन की बढ़त कुछ नहीं हो रही। इट्स नॉट, नो डेवलपमेंट ऑल, इट्स ऑल एंटरटेनमेंट। और उस एंटरटेनमेंट की इतनी जरूरत नहीं है इस बच्चे को। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि पता नहीं जिससे मोबाइल ले लिया तो ये क्रांतिकारी ना हो जाए, कहीं दूसरों के साथ कंपेयर ना करे, क्या इसको इतने इसका एंटरटेनमेंट ना छीन लिया जाए। भाई इतने एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है आपके बच्चे को। मुझे लग रहा है कि आजकल बच्चा हो ही एंटरटेन रहा है। वो सोता ही तब है जब वो एंटरटेनमेंट से थक जाता है। मनोरंजन की परिभाषा ये थी कि जब अपने काम से हम रूटीन से थक जाएं तब हमें मनोरंजन की जरूरत थी। पर अनफॉर्चुनेट थिंग इज व्हाट, आवर किड्स गेट टायर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड देन दे स्लीप। इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या होगा। इसकी सबसे इसमें काफी हद तक जो कमजोरी है वो हमारी है। अगर हम चाहेंगे तो वी कैन कंट्रोल दैट। क्लियर, समझ आइए आपको बात। इस पे ध्यान दे लो, काफी हद तक आप कंसंट्रेशन वाले मुद्दे को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें 3D वीडियो गेम्स नहीं है, काफी वीडियोस भी हैं जो बहुत फास्ट हैं, राइट। अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीवी वॉचिंग। अब टीवी तो देखना, अब तो मेरे ख्याल से पूरी दिन में होता क्या है, पढ़ाई या टीवी, या पढ़ लिए, स्कूल की क्लास चल रही है, स्कूल से असाइनमेंट आ रही है, वो हो गया, या टीवी चल रहा है। पर टीवी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका बच्चा देख क्या रहा है। फिलहाल इन एनी टाइम, चाहे वो आज का समय हो, चाहे पुराना पिछला समय हो, टीवी वॉचिंग के लिए मैक्सिमम जो समय है स्क्रीन का, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, टीवी है, मैक्सिमम स्क्रीन के लिए कहा गया है कि 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए दिन में। हालांकि ये चीज मेंटेन नहीं हो रही आजकल, तो बिल्कुल नहीं मेंटेन हो रही। बट आपको सिर्फ यह ध्यान देना कि अगर हम नहीं मेंटेन कर पा रहे तो कम से कम नुकसान को कम कर सके। और नुकसान कैसे कम होगा, अगर आप ध्यान देंगे कि वो क्या देख रहा है। आपके बच्चे क्या देखते हैं टीवी पे, कोई एक आधा बताएगा ग्रुप चैट बॉक्स में। व्हाट डू दे वॉच? कार्टून्स, यस। कौन से कार्टून्स? टीवी में गेम्स भी चलती हैं, बिल्कुल ठीक है। कार्टून्स ज्यादातर कार्टून्स, मूवी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गुड। मैं आपको अच्छा प्रीव्यू देता हूं एक इसके ऊपर। झांसी की रानी, वेरी गुड। लाफ्टर शोज, तारक मेहता, कार्टून एंड फिल्म्स। नाउ सी, कुछ भी देख रहा है वो, आपको देखना पड़ेगा कि जो वो देख रहा है, जो प्रोग्राम वो देख रहा है, उसकी नेचर कैसी है। डोरेमोन, देन दिस शिनचैन, दिस ऑगी एंड द कॉकरोचेस, छोटा भीम, व्हाटएवर इट इज, जो भी है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। 2 चीजें ध्यान में रखना, 2 चीजें बच्चा बहुत जल्दी विजुअल से सीखता है, कार्टून से सीखता है, टीवी प्रोग्राम से सीखता है। एक लैंग्वेज और दूसरा बिहेवियर। अब आप देखिए, खुद डिसाइड कीजिए कि जो प्रोग्राम आपका बच्चा देख रहा है उसमें जो उसका मेन करेक्टर है, जो जिसको वो मॉडल करने की कोशिश कर रहा है, वो करेक्टर क्या बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है और क्या लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करता है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा डोरेमोन देख रहा है और नोबिता को मॉडल करना शुरू कर दे, तो जो नोबिता करता है वो एक्सपेक्ट करो कि अब आगे आपका बच्चा वही करने वाला है, राइट। अगर शिनचैन देख रहा है और शिनचैन को मॉडल करना शुरू कर दिया उसने, तो डेफिनेटली श्योर हो कि जैसे शिनचैन कर रहा है वैसे ही आपका बच्चा भी करने वाला है। लैंग्वेज एंड बिहेवियर, 2 चीजें तो डेफिनेटली कर रहा है। कुछ ऐसे कार्टून भी हैं जो मेरे को समझ नहीं आता व्हाई पेरेंट्स आर, निंजा हथौड़ी, या ट्रू, ऐसे कार्टून हैं जो सोच नहीं सकते कि क्यों देखे जा रहे हैं। ऑगी एंड द कॉकरोचेस, वो बिल्कुल वाहियात है। डॉगी डॉन, वाहियात है वो प्रोग्राम, पता नहीं क्यों आवर किड्स आर वाचिंग। और जो बड़े बच्चे हैं जो नहीं भी देख रहे हैं, उनके लिए भी पेरेंट्स को ये एक अपॉर्चुनिटी देता हूं कि जो भी आपके बच्चे देख रहे हैं, एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, और इवन रामायण ऑल्सो, जो भी देख रहा है, अच्छा रामायण, पृथ्वीराज चौहान, एनी प्रोग्राम, उसके पास आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बच्चे के साथ बात करें कि इस प्रोग्राम में उसे क्या अच्छा लगा, कौन सा करेक्टर अच्छा लगा, राइट, क्यों अच्छा लगा वो करेक्टर। बिलीव मी, अगर आप ये इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेते हैं, ये बात करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका बच्चा सोचता कैसे है।
राइट? रामायण देखिए, उसे कौन सा सीन अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, क्या और क्यों, इन दो का आंसर मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा सोचता कैसे है। अगर वो किसी अच्छी चीज से प्रभावित है तो आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, अगर वो किसी गलत चीज से प्रभावित हो रहा है तो आप उसकी फीलिंग को इनवैलिडेट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ ना किया तो दोनों अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। ना आप उसकी जान पाओगे कि आपका बच्चा सोचता कैसे है, क्या कितना अच्छा सोच रहा है, और ये भी नहीं जान पाओगे कि वो किस गलत चीज से अपना प्रभावित हो रहा है। ऑल प्रोग्राम्स में कोई ना कोई अच्छा करेक्टर भी है और कोई ना कोई बुरा करेक्टर भी है, और सम टाइम हमारे बच्चे मॉडल किसको करना शुरू कर देते हैं, गलत करेक्टर को, और ये हमें ध्यान में रखना है। अगर आप बात कर रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, हर प्रोग्राम के बाद कोशिश कीजिए कि अगर आप दोनों ने इकट्ठे कोई प्रोग्राम देखा है या उसने भी देखा है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, राइट? टीवी स्क्रीन या किसी भी माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, एक चीज बहुत बढ़िया है, आप सब जानते हैं कि इस समय हम शायद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों को, स्क्रीन उनसे छीन नहीं सकते, क्योंकि वो पढ़ाई में भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी कर रहे हैं और कई चीजों के लिए कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हम एक रूल फॉलो कर सकते हैं जिससे उस स्क्रीन का इंपैक्ट उसके ब्रेन पे और उसकी आंखों पे कम हो सके, कम हो सके। मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा। उसका एक रूल है, पहला रूल है, अगर आप कहीं लिख लें, द फर्स्ट रूल इज कि जो दूरी है स्क्रीन से आपकी आंखों की, वो स्क्रीन के साइज की 5 गुना होनी चाहिए। जो स्क्रीन का साइज है इससे 5 गुना दूरी से आपको टीवी देखना चाहिए, वो चाहे टीवी है, चाहे टैबलेट है, चाहे लैपटॉप है, चाहे मोबाइल फोन है। जो भी स्क्रीन का साइज है उससे 5 गुना दूरी पे आपकी आंखें होनी चाहिए, उचित दूरी यही है। तभी हम कह पाएंगे कि इंपैक्ट आंखों पे या ब्रेन पे उस स्क्रीन का कम होगा, राइट? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये कई बार हम मेंटेन नहीं कर पाते। मैं आपको सिंपल सी थ्योरी बताता हूं कि अगर किसी बच्चे ने 1 घंटा टीवी देखा और वो आधी दूरी से देख रहा है, तो 1 घंटे का मतलब है कि उसने 2 घंटे टीवी देखा, डबल हो गया। उचित दूरी है 5 गुना। अगर आपके घर में 32 इंच की स्क्रीन है तो 32 इंच गुणा 5, इतनी दूरी पे बैठने की जगह होनी चाहिए टीवी देखने के लिए। अगर मैं 6 इंच का स्क्रीन, ये मोबाइल स्क्रीन देख रहा हूं, तो मेरी दूरी क्या होनी चाहिए, 6 इंच से इतना दूर। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट एटलीस्ट टीवी, लैपटॉप, इन चीजों पे आप इसको, इस उचित दूरी को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर हुआ है चीज? कितने गुना, हाउ मच, जरा लिख के बताइए, कितने गुना होनी चाहिए दूरी? 5 गुना। किससे 5 गुना? स्क्रीन के साइज से। मतलब वो लोग, कई बार हम गलती करते हैं कि हमारे रूम छोटे और हम बड़ी बड़ी टीवी खरीद लेते हैं। नॉट नीडेड, नॉट एट ऑल नीडेड। It's better to have small screens in small rooms, not big screens. Clear? It is impacting brain and eyes both in a big way. तो मतलब 1 घंटे का बराबर 2 घंटे के बराबर हो जाएगा अगर आधी दूरी से देख रहा हूं तो। दूसरा रूल इसके लिए है लाइटिंग का रूल, लाइटिंग का। अब आप देखो, स्क्रीन, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, सबसे एक लाइट निकल रही है, अंदर से बाहर की तरफ एक लाइट निकल रही है, राइट? जितनी ये लाइट निकल रही है, इससे 3 गुना ज्यादा लाइट आपके कमरे में होनी चाहिए जहां बैठ के आप वो स्क्रीन देख रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितनी लाइट स्क्रीन से निकल रही है बाहर की तरफ, इनसाइड आउट, उससे 3 गुना ज्यादा लाइट आपके उस कमरे में होनी चाहिए जहां पर आप बैठ के स्क्रीन देखते हो, अगर आप इंपैक्ट कम करना चाहते हो। कई, मतलब इसके लिए कोई थंब रूल है, ये इनमें कोई, मैं कोई डिवाइस लेके कैलकुलेट नहीं करूंगा कि 3 गुना है कि नहीं। मोटी मोटी कैलकुलेशन ये है कि लाइट बंद करके स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। लाइट बंद करके अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन का इंपैक्ट आपकी आंखों पे और आपके ब्रेन पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो बहुत हार्मफुल है। तो जो बच्चे आंखें बंद, लाइट बंद करके मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, लाइट बंद करके टीवी देख रहे हैं, वो कहीं आपकी तरफ से बिल्कुल सजेस्टेड नहीं होना चाहिए। रादर जहां बच्चा बैठ के टीवी देख रहा है वहां एक आधी फालतू लाइट जलनी चाहिए, 2-3 एक्स्ट्रा लाइट लगा के रखो लिविंग रूम में जहां टीवी लगा हुआ है, ताकि वो जली रहे उस समय। आप ऑटोमेटिकली आपकी बच्चों की पे स्क्रीन का जो इंपैक्ट है आंखों पे, वो कम कर लेंगे, आंखों और ब्रेन दोनों पे। मेक सेंस? जितनी स्क्रीन से लाइट निकल रही है उसका 3 गुना लाइट आपके रूम में होनी चाहिए, जिस रूम में आप टीवी देख रहे हैं। हम में से कई लोगों को आदत है रात को लाइट बंद करके मोबाइल फोन पे देखने की। बिलीव मी, 3 गुना इंपैक्ट हो गया। आपने 15 मिनट देखा है मोबाइल, इसका मतलब आप, इट इज इक्वल टू 45 मिनट्स। सिंपल कैलकुलेशन, देसी कैलकुलेशन।
अब आपको यही ख्याल रखना है कि लाइट बंद होके टीवी नहीं देखना बच्चे ने, ऑटोमेटिकली उसका आप टीवी स्क्रीन का इंपैक्ट कम कर लेंगे। आपके बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं, यूट्यूब पे गाने वगैरह देखते होंगे, है ना? तो जिनके बच्चे 12-13 साल से कम है, मेरी सजेशन ये है कि वो यूट्यूब देखने की जगह उनके बच्चे यूट्यूब किड्स देखें, क्योंकि जो नॉर्मल यूट्यूब है उस पर बहुत कुछ है, उस पर कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, वहां पर कुछ भी आ सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी, वायलेंस भी है उस पर, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है, गालियां भी निकल सकती हैं, क्योंकि वो सबके लिए बना है, एडल्ट्स के लिए, उस पर कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब पेरेंट्स से, अभी इसी समय जैसे ये कॉल खत्म हो, अपने फोन में यूट्यूब किड्स डाउनलोड कीजिए और अपने बच्चे को प्रेरित कीजिए कि वो नॉर्मल यूट्यूब ना देखे, रादर उसे लॉक कर दीजिए उसके लिए, वो यूट्यूब किड्स ही देखेगा। अब यूट्यूब किड्स पे सब कुछ है जो उसको चाहिए, उसे उसे सॉन्ग्स चाहिए, उसे राइम्स चाहिए, उसे एजुकेशनल वीडियोस चाहिए, उसे आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियोस चाहिए, उसे साइंस फिक्शन चाहिए, ये सब यूट्यूब किड्स पे है, बट वही नहीं है जो आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा देखे। तो इस चीज को आप ख्याल रख सकते हैं। कई बार हमें सब कुछ है यूट्यूब किड्स पे, कार्टून्स भी हैं, बट वो नहीं है जो आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा देखे। तो एटलीस्ट इस चीज पे कंट्रोल किया जा सकता है। गलत ऐप जो अडल्ट्स के लिए ऐप बनी है वो आपके बच्चे के लिए नहीं बनी। यूट्यूब किड्स डाउनलोड कीजिए, आपको फ्यूचर में आपके साथ कोई ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनेगी जहां पर आपको इस चीज को फेस करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ देख के फिर आपसे पूछे, आप एम्बेरस हो, और नहीं चाहते आप बच्चा आप इन चीजों को देखे, राइट? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो डिस्कस कर रहा था, इसमें एक फैक्टर आई वांट टू गिव यू मोर, जो इन दिनों बहुत रेलेवेंट है। अभी आपके जो बच्चे की रूटीन है उसमें ज्यादातर काम क्या हो रहा है? एक तो वो पढ़ रहे हैं, स्कूल का काम आ रहा है उनके पास, और दूसरा वो स्क्रीन पे है, और ज्यादातर वो क्या देख रहे हैं? एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड चीजें ही, ज्यादातर एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड चीजें ही। तो मैं आपसे एक छोटा सा एक मॉड्यूल शेयर करता हूं, शायद ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। अगर ये आपको काफी हेल्प करेगा इन दिनों में बच्चे की रूटीन को मैनेज करने के लिए। हमारे पास 15 मिनट है ना सर? बिल्कुल है सर। चलो, ओके गुड। नाउ दिस इज वेरी दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन मेनी वेज। जो आज रूटीन चल रही है बच्चों की, डेफिनेटली वी ऑल नो दैट कि रूटीन डिस्टर्ब हुई है बच्चों की, बट मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आपने क्या अभी क्या नोटिस किया कि किन तरीकों से बच्चों की रूटीन डिस्टर्ब हुई है? इन ऑल व्हाट वेज देयर रूटीन गॉट डिस्टर्ब्ड? क्या क्या डिस्टर्ब हुआ उनकी लाइफ में भी, बच्चों की, बड़े बच्चे हैं चाहे छोटे बच्चे हैं, क्या क्या वो नहीं कर पा रहे, या क्या क्या उनका डिस्टर्ब हो चुका है इन दिनों में? इफ यू कैन। स्लीपिंग टाइम, गुड पॉइंट नीतू जी, स्लीपिंग टाइम गॉट डिस्टर्ब्ड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, अप्रिशिएट। व्हाट एल्स? स्टडी की रूटीन, बिल्कुल वो तो डिस्टर्ब हुई है, स्कूल नहीं जा रहे, वो डिसिप्लिन था, वो डिसिप्लिन घर पे नहीं बन पा रहा। प्लेइंग टाइम, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब, चेंज हो गई हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट बढ़ गया होगा शायद थोड़ा बहुत। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट, एब्सोल्युटली राइट, कन्फाइंड बाउंड्रीज में रहना है, खेल नहीं पा रहे, स्टडी डिसिप्लिन नहीं है, गुड माही जी। स्पोर्ट्स, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी उस दायरे की नहीं हो पा रही, अंदर अंदर हो रहा है जो हो रहा है। ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो गई हैं, स्लीपिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो गई हैं, स्क्रीन्स उनकी लाइफ में बढ़ गई हैं, अग्रेसिव हो गया बिहेवियर, गुड पॉइंट, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे। शायद आप बहुत छोटे बच्चे को तो समझा भी नहीं पा रहे, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है।
एब्सोल्युटली राइट. सो देयर लॉट ऑफ फैक्ट इन लॉट मेनी वेज हमारे बच्चे की रूटीन डिस्टर्ब हुई है. अब वो हो चुकी है, तो क्या हम कुछ ऐसा सिस्टमेटिक करें जिससे हम उसे सुधार सकें? आर यू इंटरेस्टेड टू नो दैट? कि हम कुछ ऐसा सिस्टमेटिक करें कि दिस गेट इंप्रूव, ये इंप्रूव हो जाए सिचुएशन, राइट? आर यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दैट? कैसा क्या किया जाए, इस रूटीन को कैसे बदला जाए कि जो भी स्थिति है, जितनी भी डिस्टर्ब हुई है, ये उससे बेटर सिचुएशन में आ सके. यस, सो आई विल गिव यू वन वे, गुड वे. इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच. अभी करना क्या पड़ेगा आपको? हस्बैंड वाइफ बच्चे तीनों को, या जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनको बैठना पड़ेगा और आपको एक प्लेन पेपर लेना पड़ा. अब आपको अपने बच्चे की रूटीन को 4 हिस्सों में बांटना है, 4 पार्ट्स, 4 हिस्सों में बांटना है. इन हिस्सों को हम ये कह सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं आपको जो बता रहा हूं मतलब उसकी रूटीन जो एक्टिविटीज हैं उसमें पहला हिस्सा, नॉट पहला एज सच, एक हिस्सा फिजिकल एंगेजमेंट होगा कि उसकी रूटीन में कुछ फिजिकल एंगेजमेंट होनी चाहिए. एकेडमिक एंगेजमेंट, स्कूल कोशिश कर रहा है काफी हद तक कि वो एकेडमिकली एंगेज करे बच्चों को. एंड थर्ड इज एंटरटेनिंग एंगेजमेंट्स एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेटिव एंगेजमेंट्स. तो 4 हिस्सों में अभी हम दिन को बांटेंगे बच्चे को. बिलीव मी, अगर ये 4 हिस्सों में बांटने में हम सक्सेस अपना सफल हो गए तो 50% चांस है, 50% तो 50% तो है ही है कि ये चीज फॉलो हो जाएगी. और अगर आप अच्छे से कर गए तो 100% भी हो जाएगी. बिलीव मी, जो आपने दिक्कतें बताई हैं सारी सेटल हो जाएंगी. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि वो क्या है. पहले तो जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है उनकी फिजिकल एंगेजमेंट्स नहीं है अभी कोई, तो कोशिश कीजिए कि दिन में 3 समय एटलीस्ट हो आपके बच्चे के, जब आप अलग अलग टाइम पे 15 से 20 मिनट की 3 एंगेजमेंट कर रहे हैं, जितनी भी पॉसिबली घर के अंदर की जा सकती हैं. उसमें योगा हो सकता है, उसमें जुम्बा हो सकता है, उसमें डांस हो सकता है, उसमें कुछ ऐसी गेम्स हो सकती हैं. अगर आपके घर में बॉल पड़ी है तो कैच बॉल खेल सकते हैं अपने बच्चे के साथ. कुछ ऐसा जिसमें उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो फिजिकल एक्टिविटी में, बैठ के करने वाला काम नहीं, जिसमें वो चले, जिसमें वो थोड़ा सा भागे, क्योंकि घर में इतना भाग नहीं सकते हम. तो जिसमें पूरी बॉडी की थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो, और इसे दिन में 3 बार करना है. आपको जो पेपर लिया आपने उसको 3 जगह आपको मेंशन करना पड़ेगा, एक मॉर्निंग एंगेजमेंट, एक नून और एक इवनिंग एंगेजमेंट. वो एंगेजमेंट इतनी लंबी भी मत रखो कि वो थक जाए. 15 to 20 मिनट्स ओनली, नॉट मोर देन दैट. और कोशिश कीजिए कि ये जो एंगेजमेंट है इसमें आप भी उसके साथ हो, क्योंकि अब आप भी उनके साथ हैं, घर पे हैं, तो आप इस चीज का एक सपोर्ट दे सकते हैं उन्हें कि अगर आप उनको अकेले छोड़ देंगे कि वो अकेले इस एक्टिविटी को करें, दे मे नॉट बी एबल टू डू इट. अगर आप अपनी फिजिकल एंगेजमेंट भी उनके साथ प्लान कर लें, एक सुबह की, एक दोपहर की, एक इवनिंग की. अगर आप काम पे जा रहे हैं, अपना इन्वॉल्व हैं, तो आप इवनिंग और मॉर्निंग की प्लान कर सकते हैं, नून ना करें. बट दिस वे अगर आपने ये प्लान कर दी तो 50% तो ये चीज हो जाएगी डेफिनेटली. अब उसमें कोई गेम प्लान कीजिए. अगर आपके घर में बैडमिंटन है तो छत पे खेल सकते हैं, छत पे खेलिए. आई एम श्योर आपकी सिटी में अभी तक वो कल्चर नहीं आया होगा कॉमन छतों वाला, आपके पास अपनी छत है, राइट? तो यू कैन यूज दिस टाइम. 3 एंगेजमेंट्स दिन की, मॉर्निंग, नून, इवनिंग. अगर इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, पर एटलीस्ट इतना तो होना जरूरी है. तो अपनी रूटीन में अब इसको प्लेस कीजिए, कहीं पे शेड्यूल में कहीं प्लेस कर दिए कि इतने बैठेंगे और ये करेंगे. और अगर आप कर लेंगे साथ में तो बच्चा भी इनकरेज होगा उस काम को करने के लिए. दूसरा है एकेडमिक एंगेजमेंट, जिसमें स्कूल काफी साथ दे रहा है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहे हैं आपकी. बट इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं स्कूल की. डेफिनेटली वो डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत मुश्किल है, पर एक चीज की जा सकती है. जैसे पहले दिन शुरू होता था प्री कोविड, जब वो स्कूल जाता था रेगुलरली, अभी भी आप सेम तरीके से घर पे भी रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्ट इन द सेम वे. वो उठेगा, नहाएगा, धोएगा, रेडी होगा, ब्रेकफास्ट करेगा और अपनी क्लास स्टार्ट करेगा जैसे पढ़ता था. वो होम असाइनमेंट आ रही है, कोई क्लास लग रही है, तो वैसे ही बच्चा करे, सेम वे में. इतना किया जा सकता है घर पे. बिलीव मी, हफ्ते में एक आधी बार उसे यूनिफॉर्म भी डलवा दो, ताकि वो उस फ्रेम में आए, राइट फ्रेम ऑफ माइंड में. उसे भूल ना जाए कि ये भी पहननी होती है. बिलीव मी, दिस वर्क वंडर्स. अगर रूटीन सेम हो गई, रूटीन खराब ना हुई, तो जब पोस्ट कोविड बच्चा नॉर्मल होगा, जब सब कुछ नॉर्मल होगा, स्कूल जाना है, उसकी हैबिट्स खराब नहीं होंगी, उसकी रूटीन खराब नहीं होगी. इन मेनी वेज यू कैन कीप मेंटेन इट. काव्यांश शर्मा ये लिख रहे हैं, आई डू ग्रेट, एब्सोल्युटली, आई अप्रिशिएट. और ये बहुत अच्छी चीज है. मैंने तो कई पेरेंट्स को देखा, वो बच्चों को रोज यूनिफॉर्म भी डलवाते हैं पूरे टाइम पे, जितनी देर क्लास चल रही है, व्हिच इज गुड. वो कम से कम उस बच्चा राइट मेंटल फ्रेम में होता है कि मेरे को पढ़ना है. उसने शूज पहने हैं, उसने वर्दी डाली है, यूनिफॉर्म पहनी है.
एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर खराब करना है तो खराब तो हो ही चुका है, ठीक करना है तो दिस इज द बेस्ट वे। उस टाइम हो उठने का, चाहे वो टाइम लेट हो चुका है, अब वो शायद उसी समय पे नहीं उठता जितने नॉर्मल समय पे उठता था, 1 घंटा लेट हो, पर जब भी उठेगा, ब्रेकफास्ट करेगा और क्लास अपनी शुरू करेगा। सो दिस इज समथिंग विच आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू। अगर आपको लग रहा है कि कहीं उतना रूटीन नहीं बन पा रही, तो कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, जहां से सेम कंटेंट जो है आपका बच्चा अपने ऑनलाइन भी सीख सकता है, थोड़ा बहुत प्लेजरेबल लर्निंग हो सकती है। खान अकेडमी है, दीक्षा है, आप चाहें तो इस पे अपने अकाउंट बच्चों के बना सकते हैं, बट डेफिनेटली कोई ना कोई एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट कैच है एकेडमिक एंगेजमेंट में। आपका बच्चा जब यूजुअली रूटीन में स्कूल जाता था, तो उसकी सबसे बड़ी एंगेजमेंट दिन की होती थी अपना स्कूल की, 5-5.5 घंटे की। तो पहले स्कूल जाता था, फिर घर आता था, फिर शाम को होमवर्क करना होता था उसे, या किसी ट्यूशन पे जाना था। तो देयर वर 2 एंगेजमेंट्स इन अ डे। ऐसे ही आज भी आपके घर में दिन की 2 एंगेजमेंट्स होनी चाहिए। एक तो स्कूल करवा ही रहा है सुबह की, अब शाम को भी आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अपनी असाइनमेंट्स, अपना होमवर्क शाम को पूरा करे, राइट? तो आपको अगर ये 2 दिन में एंगेजमेंट्स होंगी तो एकेडमिक वाला पार्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% पूरा हो जाएगा, पर आपको ये दिमाग में डर नहीं होगा कि बच्चे का रूटीन पीछे रह गई या कुछ हो गया। तो यू कैन हैव टू हैव 2 एंगेजमेंट्स। दिन की जो सुबह वाली एंगेजमेंट है वो बड़ी होगी, और शाम की एंगेजमेंट थोड़ी छोटी हो, बट डेफिनेटली। आपने कुछ पूछा है सर, कोई रिप्लाई पूछने का पूछ रहा है? I'll request Dr. Nayak कि लास्ट में अगर कोई क्वेरी हो तो I'll address that. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एंटरटेनिंग एंगेजमेंट मैंने आपको बता दी है। कुछ गेम्स में जो आपको बता रहा था ना, लिख लो, चाहे आप इसकी फोटो भी खींच सकते हो। अनब्लॉक है, फ्री फ्लो है, सुडोको है, वर्ड हंट है, फाइंड आउट डिफरेंसेस है, ब्रेनवर्सिटी है, हिडन ऑब्जेक्ट गेम्स है, जून्स जर्नी है, एडवेंचर क्रॉनिकल्स है। ये ज्यादातर आपको एंड्रॉइड पे भी मिल जाएंगी और लैपटॉप पे भी मिल जाएंगी। और अगर आप बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं अपने बच्चों के साथ, इतना समय दे सकते हैं, तो लूडो, मोनोपोली, कैरम, चेस कुछ भी खेल लो। 3D व्यू गेम से तो फार बेटर है, राइट? अगर बोर्ड गेम, स्क्रीन अगर ना हो। हाँ, एक और एंगल मैं आपको बताना चाहता था, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे तब कोई स्क्रीन ऑन नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन तो पहले ही जिंदगी में बहुत आ चुकी है, तो एटलीस्ट आप स्क्रीन को उस समय ऑन मत रखना कि वहां पर जूम्बा चला दिया स्क्रीन पे और उसी को देख देख के जूम्बा हो रहा है। नो, नॉट नीडेड। म्यूजिक हो सकता है बैकग्राउंड पे, बट स्क्रीन नहीं होगी। ये गेम्स आप फोटो खींच लीजिए, आपके काम आएंगी। आप अपने बच्चे को डाउनलोड करवा सकते हो। ब्रेनवर्सिटी बहुत अच्छी गेम है आईक्यू डेवलपमेंट के लिए, और इतनी इंटरेस्टिंग है, एक बार बच्चे का इंटरेस्ट बन गया, फिर वो 3D व्यू गेम्स की तरफ नहीं जाएगा, राइट? डिस्टेंस रूल मैंने आपको बता दिया, 5 टाइम्स एंड ऑल, यूट्यूब किड्स। अब ये था एंटरटेनिंग एंगेजमेंट, जो ये तो हो ही रहा है। हमारी कोशिश क्या है कि एंटरटेनिंग एंगेजमेंट से कुछ समय चुरा के बच्चे का एकेडमिक एंगेजमेंट में डालें या फिजिकल एंगेजमेंट में डालें। क्योंकि अगर कुछ नहीं हो रहा तो वो एंटरटेनमेंट ही ले रहा है सिर्फ सारा दिन। अगर कुछ डिसिप्लिन नहीं है घर में, कोई फ्लो नहीं बना हुआ, तो डेफिनेटली वो क्या कर रहा है सारा दिन, जितनी देर पढ़ाई चल रही है पढ़ाई, उसके बाद सारा दिन एंटरटेनमेंट। तो एटलीस्ट हम उस चीज से निकाल सकते हैं। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस समय के दौरान, इंफॉर्मेटिव एंगेजमेंट। इंफॉर्मेटिव एंगेजमेंट को मैं एडुकेटिव एंगेजमेंट भी कहता हूं। कुछ भी इस समय अगर आप नया सीख रहे हैं, वो इंफॉर्मेटिव एंगेजमेंट में आएगा। आप पहले शिकायत करते थे कि जी स्कूल से समय नहीं मिलता, स्कूल से समय नहीं मिलता, हम तो अपने बच्चे को कुछ नया सिखाना चाहते हैं। अब सिखाओ, अब सिखाओ, इट्स अ गुड टाइम। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ नया सिखाओ। कुकिंग सिखाओ, कपड़े धोना सिखाओ, बर्तन मांजना सिखाओ, सिखाओ। इट्स अ टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। उसका प्लान बनाओ। अगर कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो मैं आपको एक ऐप बता रहा हूं, लिख लो डुओलिंगो। इससे बेहतरीन ऐप नहीं है इस समय कोई, जो आपको कोई नई लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, डच, एनी मंदारियन, एनी लैंग्वेज यू वांट टू लर्न, इंडियन, अब्रॉड, कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, डुओलिंगो से बेहतरीन ऐप नहीं है, इवन बड़ों के लिए भी। तो आपके, अगर आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं और सिखाना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए। इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट। दिन की आधे घंटे की, पौने घंटे की एंगेजमेंट हो सकती है। मैंने लिखा है यहाँ पे, फोटो है यहाँ पे, डुओलिंगो, फोटो खींच लीजिए, यही लोगो है उसका डुओलिंगो का। और ब्यूटीफुल ऐप है, अगर आप आज भी इसे डाउनलोड करके शुरू करेंगे कोई भी लैंग्वेज सीखना, आपका बच्चा एंजॉय करेगा। इतने क्रिएटिव वे से सिखाते हैं बच्चों को, तो आप खुद अप्रिशिएट करेंगे कि ये चीज अच्छी बच्चे के को मिल गई, और उसकी एनर्जी एक एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट से हटके कुछ नया सीखने पे लगनी शुरू हुई, राइट? स्क्रिप्ट, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो
स्क्रिप्ट पे जरूर अपना अकाउंट बनाइए, आपके लिए भी है, अपने बड़े बच्चों के लिए भी है। ये स्क्रिप्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर किताबें पढ़ने के लिए मिलती हैं फ्री। ये 60 दिनों के लिए फ्री है अभी लॉकडाउन के टाइम पे, तो इसका फ्री वर्जन तो यूज कीजिए 60 दिन खुल के। 60 दिन आप इस पे, आपको ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी, आपको बुक्स नॉर्मल पीपीटीज भी मिलेंगी। तो आप जाइए स्क्रिप्ट पे, स्क्रिप्ट इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म, बहुत बुक्स पढ़ी है वहां पे, राइट। तो बच्चों के लिए कोई नई किताब, अब कोई नहीं रीड कर सकता तो एटलीस्ट ऑडियो बुक्स है, वो ऑडियो बुक्स सुन ले। एक बार बच्चे का इंटरेस्ट बनने की बात है, और उस बच्चे के सारी बुक्स ज्ञान वाली नहीं है, बच्चे के इंटरेस्ट वाली किताबें भी हैं वहां पे, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एवरीथिंग इज देयर। तो स्क्रिप्ट पे अकाउंट बनाइए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको एक बार अपने साथ एक दो टेड के अच्छे वीडियो सुनाई दिखाइए। टेड, यू नो टेडएक्स, टेड की एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसपे मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स आते हैं पूरे वर्ल्ड के। तो टेड की ऐप डाउनलोड कीजिए, और बच्चे बड़े जो हैं उनको एक बार अपने साथ बिठा के एक आधा टेड का प्लेटफॉर्म देखिए। हिंदी प्लेटफॉर्म भी है टेड का, जहां पर जो उसका लाइव टेलीकास्ट शाहरुख खान भी करता था पहले, आपको वो भी मिल जाएंगे वीडियोस। बट डेफिनेटली वहां से इन्हें बड़े बच्चे हैं जो 13-14 साल के, 15 साल के हैं, इनको ये व्यू पॉइंट मिलता है कि 12-12, 13-13 साल के वर्ल्ड के छोटे छोटे बच्चे क्या ड्रीम रख के बैठे हुए हैं, क्या बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इट इंस्पायर्स देम, इनको प्रेरित करेगा। एक बार आपने उनके साथ देखा, बिलीव मी, दूसरी बार उनका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम इन बच्चों के साथ ये है, इनको पता ही नहीं है कि एनर्जी लगानी कहां पे, इसीलिए वो पबजी में घुसा हुआ है। बट जैसे ही उसे कोई और जगह भी मिलेगी ना, वो अपनी एनर्जी को वहां से निकाल के यहां डालना शुरू कर देगा, डाइवर्ट करेगा, प्रोवाइडेड उसके मतलब की उसे कुछ चीज मिलनी शुरू हो। अदरवाइज उसकी लाइफ में एक ही चीज ने घर कर रखा है, पबजी पबजी पबजी, और रादर एनी अदर ऐप, बट नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर योर चाइल्ड्स ब्रेन, नॉट एट ऑल हेल्दी। उस पर्टिकुलर गेम ने, उस चीज ने उसे, उसके दिमाग को हुक करके रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहा, और वो अपना प्राइम टाइम लूज कर रहा है। प्राइम टाइम मतलब जब उसने किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, जब उसने कुछ नया सीखना है, उस प्राइम टाइम को लूज कर रहे हैं। ये हमें समझ नहीं आ रहा, नॉट एट ऑल हेल्दी। लर्न कुकिंग, न्यू डिशेस, लर्न न्यू आर्ट्स। एक गेम मैं आपको बता रहा हूं, लिमोसिटी, ये लिख लो, लिमोसिटी लिखा भी है यहां पे। लिमोसिटी इज अ गुड ऐप आईक्यू डेवलपमेंट के लिए, फ्री ऐप है। इसका डेली का आपको रोज टास्क आती है, रोज बच्चा करे लिमोसिटी, आप भी करो, आपको भी पता चलेगा कि आप, अब जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे के किस ब्रेन के पोर्शन पे काम कर रही है चीज, उसकी मेमोरी को इंप्रूव कर रही है, उसकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर रही है, उसके लॉजिक को इंप्रूव कर रही है। डू प्ले दिस गेम। अगर करना ही है स्क्रीन पे तो अच्छी चीज पे दिमाग लगाया जाए, जो एंटरटेनमेंट भी दे और कुछ डेवलपमेंट भी करे। लिमोसिटी इज वन गुड एग्जांपल। क्विक मैथ्स, जिन बच्चों को मैथ्स से फोबिया है, ये वैदिक मैथमेटिक्स का एक बड़ा रिफाइंड सा वर्जन है, बट डेफिनेटली ये भी एक सीखने वाली चीज है, बच्चों को मैथ्स से प्यार हो जाता है। क्विक मैथ्स इज अ गुड ऐप, फ्री ऐप है। जितनी मैंने आपको सजेस्ट किए हैं सारे फ्री प्लेटफॉर्म है, ये पेड प्लेटफॉर्म्स नहीं है। रादर पेड भी बहुत कुछ है, पर मैंने आपको सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स ही बताए। ग्रेट, क्लियर। अगर आपने ये 4 चीजों को मेंटेन कर लिया, मतलब पूरे दिन की एंगेजमेंट को 4 हिस्सों में बांट लिया, बिलीव मी, आपका काम हो गया, आपने अपना काम कर दिया। जितनी जितनी आप बता रहे थे ना, जितना आप कह रहे थे ईटिंग हैबिट्स बदल रही हैं, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो बहुत कुछ बदलेगा। उसका फिजिकल पे भी इंपैक्ट होगा और मेंटल पे भी इंपैक्ट होगा। अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन्स हो जाएंगी तो डेफिनेटली उसका भी इंपैक्ट होगा, वो एग्रेसिव बनाएगा बच्चे को, फ्रस्ट्रेटेड होगा। अब आप इस समय पूछ के देख लीजिए बच्चों को, उन्होंने ये कहना शुरू कर देना कि कितनी देर हम ये करते रहेंगे। वो भी थक चुके हैं स्क्रीन से, ये पबजी खेल के भी थक चुका है वो, कितना करता है, बट क्या करेगा, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता। जब फ्री होगा उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, एंड दे गो एंड गेट ग्लूड टू दीज स्क्रीन्स, दिस पार्ट ऑफ स्क्रीन्स, राइट। टेड का अगर आपका बच्चा हिंदी में सुनना चाहता है तो टेड का एक इंडियन वर्जन है, इंडिया में भी एक शुरू हुआ था, जागरण प्रकाशन का है ये, जोश टॉक्स, JOSH, जोश टॉक्स। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट कंटेंट उतना नहीं है, बट फिर भी हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर हिंदी नेटिव लैंग्वेज में भी आपको कंटेंट मिलेगा। अगर साउथ किसी इंडियन किसी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में है, वहां पर हर तरह की लैंग्वेज का मसाला है। वहां पे कुछ स्पीकर्स हैं जो अपनी अपनी लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट करें, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और नेटिव में भी। तो जोश इज अ गुड प्लेटफॉर्म, तो ये भी आप अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं। क्लियर। सो टिल नाउ इसके आगे की मैं क्वेरी लेता हूँ, एंड आई go towards winding up this. Now this is something जिनके बच्चे बड़ी उम्र के हैं, जिनके बच्चे 11 साल से ऊपर हैं।
एक बार बताएंगे किन के बच्चे हैं जिनके 11 साल से ऊपर हैं जो इस समय हमारे साथ हैं पेरेंट्स? एक बार यार यस लिख के बता दीजिए मुझे, आई गेट टू नो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड टू नो दैट। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि इस समय वो अपने ही लेवल पे अपने दोस्तों से सुनते हैं, फोन उनके हाथ में है, टैबलेट उनके हाथ में है, एंड दे आर डाउनलोडिंग मेनी एप्स, नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी आईडी बना रहे हैं। उन्हें ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन जाके आप कुछ भी ऐसा भी इस समय ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। पहले तो ये आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है और उन बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन है कि एनीथिंग विच इज ऑनलाइन इज परमानेंट, एनीथिंग विच इज ऑनलाइन इज परमानेंट। आप डिलीट नहीं कर सकते, वो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पड़ा है। और आप ऑनलाइन इनविजिबल नहीं हो, ये बच्चों को मैसेज क्लियर होना चाहिए। कई बार उनको लगता है कि शायद मेरे बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो जो बातें 4 लोग मिलकर दोस्त करते थे ना, आजकल वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करने लग गए हैं, क्योंकि वो मिल नहीं रहे दोस्तों को। तो जैसे किसी को डीमीन करना, किसी की रेपुटेशन के बारे में बात करनी, किसी के बारे में किसी की बॉडी शेमिंग करनी, बड़े बच्चे कई बार ये करते हैं। वो एक दूसरे पहले मिलकर 4 लोग करते थे, अब वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे करने लग गए हैं जहां से ये 4 लोगों से 4 करोड़ लोगों तक पहुंचते टाइम नहीं लगेगा। उन्हें ये बताना है कि ऑनलाइन जो भी आप कर रहे हो आपकी रेपुटेशन को बिल्ड कर रहा है, वो आपकी रेपुटेशन को बिल्ड कर रहा है, और रेपुटेशन बनाएगा भी और खराब भी करेगा। आजकल अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कोई किसी ऑनलाइन है, वो बच्चे किसी धर्म ने, किसी कम्युनिटी ने कोई गलत किया तो उसके बारे में एक वेव चल पड़ती है गलत बोलने की। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे कोई एक्सट्रीम व्यू किसी रिलीजन के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं। जस्ट टू शेयर विद यू, आज चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हैं चाहे प्राइवेट जॉब्स हैं, वो आपके बच्चों के सोशल प्रोफाइल्स को पूरा खंगालते हैं चेक करने के लिए कि क्या वो एक्सट्रीम थॉट्स तो नहीं रखते। और ये बच्चों की प्रॉब्लम है, वो कई बार भावना में बह जाते हैं। वो मोदी जी को गालियां निकाल रहे हैं, वो किसी धर्म को गालियां निकाल रहे हैं, विच इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी रिसेंटली आपने शायद सुना हो, आप में से कुछ, एक बॉयज लॉकर रूम करके बहुत शोर पड़ा था, सुना होगा शायद आपने, शायद आप में से किसी एक ने सुना हो, किसी ने सुना हो। दिल्ली में कुछ बच्चों ने किसी ऑनलाइन ग्रुप, इंस्टा ग्रुप में जाके बच्चों एक लड़कियों के बारे में बातें करनी शुरू कर दी कि ये मोटी है, ये पतली है, ये ऐसी XYZ, बहुत चीजें जो शायद वो रूटीन में भी करते होंगे। बट जब उन्होंने किसी ग्रुप में जाके बात करनी शुरू कर दी, अब जब आप किसी ग्रुप में डाल रहे हो वो परमानेंटली रिकॉर्डेड है। अब वो किसी ने उसके स्क्रीनशॉट शेयर किए, बाहर डाल दिए, और वहां किसी लड़की को गैंग रेप करने की बातें चल रही थी कि इसका तो रेप हो जाना चाहिए, तो ऐसी कमीनी है, काइंड ऑफ सो एंड सो स्टफ। और वो जब लीक हुआ तो वो बहुत बड़ा बन गया और वो इतना वायरल हो गया, उसके ऊपर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, सब कुछ हुआ दुनिया जान का। उसमें जो स्टोरी बाद में नैरेटिव निकल के आया वो कुछ और ही निकला। पता चला कि वो एक लड़की थी जो लड़का बन के बातें कर रही थी और वो अपने रेप की प्लानिंग करवा रही थी। दिस इज एब्सोल्युटली शिट इन देयर माइंड, क्रैप। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, डर बहुत बड़े हैं आज की तारीख में। बस इतना बता सकता हूं, अपने बच्चों को समझाइए कि ऑनलाइन जब भी कुछ कर रहे हैं उसकी नेचर परमानेंट है। अगर आप फेक अकाउंट बना के भी सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे, नहीं बच सकते। इनविजिबल कुछ नहीं ऑनलाइन। मैं अगर यहां बैठा इस समय बात कर रहा हूं, आप अपने जूम अकाउंट से अपने घर से हैं, इट्स ऑल ट्रेसेबल। एवरीथिंग ऑनलाइन इज ट्रेसेबल, एंड तक। जो आपका घर का कमरा भी है ना, वहां तक ट्रेसेबल है। तो छुपना तो दूर की बात है। तो एनीथिंग विच इज ऑनलाइन इज विजिबल, ये बताना बहुत जरूरी है अपने बच्चों को। उनको बड़े वहम है, राइट? उनको बहुत वहम है। आप उन वहमों से उन्हें थोड़ा सा पहले बता सकते हैं कि बेटा इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप पहले बता देंगे बड़े बच्चों को तो डेफिनेटली देयर बी नो चैलेंज एज सच, राइट? पहले पता होगा तो गलती होने के चांसेस कम होंगे, बाद में तो गलती होने के बाद तो रिपेयर ही किया जा सकता है। और बच्चे बहुत चांसेस हैं ऑनलाइन गलती होने के, इसको बस ध्यान में रखो। मैं डराना नहीं चाहता, बताना चाहता हूँ। और आपका भी काम डराना नहीं है, बताना है, केयर करना है कि जो भी ऑनलाइन है विच इज। और दूसरी चीज, एक और फैक्ट ये है कि हो सकता है बच्चा आपका गलती नहीं करना चाहता, पर यहाँ एजेंसीज हैं, ऑनलाइन कंपनीज हैं, आई कॉल देम ऑनलाइन प्रेडेटर्स, जिनका काम है ये, जिनका बिजनेस है बच्चों की गलत इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, आपकी इंफॉर्मेशन को गलत कलेक्ट करना, आपकी फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करना। इट इज देयर बिजनेस। वो उसको बाद में फाइनेंशियल यूज के लिए या फिजिकल अब्यूज के लिए यूज करते हैं।
आपको फोन नहीं आते कि जी आपका कार्ड खराब हो गया, एसबीआई से बोल रहे हैं, आपको फोन आते हैं ना? आते होंगे, राइट? आप कार्ड है जी, इसको रिन्यू करा लो, ये कर लो। जिसको नहीं आते उसको बता दूं कि उसको आने वाला कॉल झूठ होगी वो कॉल। देयर आर कॉल सेंटर्स, देयर आर एजेंसीज जिन जो फ्रॉड करती हैं, वो आपको बोलता है कि आपका कार्ड खराब हो गया। ये जो है इट्स अ फाइनेंशियल फ्रॉड, इट्स ऑनलाइन प्रेडेटर्स दे आर। ऐसे ही वो आपके बच्चों को भी करते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सी ऐप बन चुकी हैं जो डेटिंग ऐप है, बच्चे को लगता है पता नहीं वहां गर्लफ्रेंड मिल जाएगी या बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, दे गो ऑन दोस डेटिंग एप्स। वो डेटिंग ऐप पे 70% जो लोग बैठे हैं वो गलत है, नकली प्रोफाइल है उनके, वो बच्चों को ट्रैप करने के लिए बने हुए प्रोफाइल है। और 25% वहां पे जो प्रोफाइल बने हैं वो शिकार बनने आए हैं, राइट? चिल्ड्रन आर सॉफ्ट टारगेट्स, एब्सोल्युटली। अभी उनका ब्रेन डेवलपिंग स्टेज पे, उन्हें दुनिया देखी नहीं है, वही दुनिया उनकी छोटी सी। आप अपने बच्चों को समझाएं कि ऑनलाइन जाके ऐसी जगह पे कहीं पे जाके कोई ऐसा पासवर्ड शेयर ना करें, कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, कोई पिक्चर शेयर ना करें। अगर आपको कोई नया नया किसी के साथ चैटिंग होनी शुरू हुई है और वो आपको बोल रहे हैं कि आप ये लिखो, आप ऐसी फोटो भेजो, कोई बात ऐसी कर रहे हैं जो आपको ठीक नहीं लग रही, डू रिपोर्ट इट, रिपोर्ट इट टू द अगर वो स्कूल कहीं से कनेक्टेड है तो आप अपने स्कूल प्रिंसिपल को बताएं, स्कूल अथॉरिटीज को बताएं। अगर वो बाहर से है तो अपने पेरेंट्स को बताएं, बट इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड। फिर कोई आपका दोस्त आपसे ही पासवर्ड मांग रहा है, डोंट शेयर दोस पासवर्ड्स। क्या होने वाला है यू डोंट नो। शरारत के लिए बच्चे कुछ ऐसा करते हैं पर वो बाद में बहुत बड़ा बन जाता है। फिर बाद में को बच्चे को ही नहीं पता होता कि मैंने क्या गलती कर दी। शरारत होती है और वो शरारत बहुत बड़ी बन जाती है। इस ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत ही है, यहां रुकती नहीं है चीज, आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। अगर कोई वायरल होनी शुरू होगी ना तो आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। तो आपको सेंसिबली इन प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा। कई बच्चे पार्टी करने गए लाइव हो जाते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, हाथ में दारू पकड़ी हुई है, बियर पकड़ी हुई है, उन्हें शायद लगता है हमें कोई देख ही नहीं रहा, दुनिया देखेगी अब। और आपको ये नहीं पता कि आप क्या करने वाले हो जिंदगी में, कितना बड़ा काम करने वाले हो। पता नहीं आप कितने बड़े पॉलिटिकल लीडर बनोगे, पता नहीं आप कितने बड़े एजुकेशन लीडर बनोगे, बिजनेस लीडर बनोगे। आपकी हिस्ट्री आपके सामने खड़ी हो जाएगी आके, आपने क्या गंद मचाया हुआ था पास्ट में। आपको लगता है आप डिलीट कर दोगे, कुछ भी डिलीट नहीं होता ऑनलाइन। आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन इज विजिबल एंड इट इज परमानेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है, अपने बच्चों को भी ये समझाएं। कोई उन्हें ऑनलाइन मिल रहा है, बात कर रहा है, उसे मिलने की कोशिश मत करो, ये सारे ट्रैप्स हैं। 99% ट्रैप्स हैं, 1% कोई गलती से सही केस होगा, 99% तो गलत लोग ही हैं। किसी की रेपुटेशन बच्चे की बुली मत कीजिए, ऑनलाइन किसी की जाके डैमेज मत कीजिए रेपुटेशन, और किसी की फोटो को गलत यूज मत कीजिए। मैं आपसे छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। आपको पता है कि अगर आप कोई किसी आप मेरी फोटो किसी गलत जगह पे यूज कर लो तो मैं आपके ऊपर क्रिमिनल सूट कर सकता हूं। आप मोदी जी की यूज कर लेते हो कहीं पे, आप कहते हो कि ये हमारा राइट है वॉइस आउट करना, नो इट्स नॉट योर राइट। डॉक्सिंग कहते हैं इसे, और साइबर क्राइम में डॉक्सिंग की जो पनिशमेंट है इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, डॉक्सिंग। और बच्चों को ये समझ नहीं आता, वो कहीं की किसी दोस्त की या किसी की फोटो मजाक में वो कर देते हैं। इट कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। आजकल बच्चों को बहुत शौक है गन्स को हाथ में पकड़ने का, ये बहुत महंगा शौक है, बहुत महंगा शौक। जस्ट टू शेयर विद यू, लीगली अगर मैं अपनी लाइसेंस्ड गन को भी अपने हाथ में रख के फोटो खिंचा लूं ना फेसबुक पे, और अगर उसे कोई रिपोर्ट कर दे कि इसने मुझे डराने के लिए फोटो डाली है, ये तो मेरे ऊपर लीगल केस है, मेरा लाइसेंस जब्त हो सकता है। और ये बच्चे नहीं जानते, राइट? क्रिएटिंग मीम्स ऑन पीपल या डीमीनिंग एनीबॉडीज रेपुटेशन, इट अट्रैक्ट लीगल एक्शन। और अगर उनको कोई तंग कर रहा है, उनको कोई बुली कर रहा है, तो उनको एक फेथ दीजिए, ट्रस्ट दीजिए उन बच्चों को कि वो आके आपको बता पाए कि हमारे साथ ये हो रहा है। इतना फेथ अपने, इतना रिलेशन अपने बच्चे के साथ बना के रखो कि वो अकेले लड़ाई लड़ने की कोशिश मत करे, वो नहीं लड़ पाएगा। अगर उसे कोई तंग कर रहा है, उसे कोई उसकी रेपुटेशन को डीमेन कर रहा है, कोई बुली कर रहा है, तो उसे बोल दो कि अगर आप अनकंफर्टेबल बोले कभी भी आके मुझसे बात करो, हम उस पर गुस्सा नहीं करेंगे। हो गई ये गलती कोई दिक्कत नहीं, बट हमें बताओ जरूर। कई बार ये बच्चे खुद लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं और वो लड़ नहीं पाते, और हार के कुछ ऐसे डिसीजन उठाते हैं जो अच्छे नहीं है, राइट? सो गिव देम दैट फेथ। क्लियर हुआ? तो मेरा मकसद आपको डराना नहीं था, बताना था, बता दिया, आप आगे बता दीजिए। एंड अभी शुरू कर दीजिए, अभी ये बहुत अच्छा समय है। अभी अब आपको 15 मिनट से शुरू करना है काम। अपने घर में एक समय निश्चित कीजिए जब आपका वो दैट टाइम इज अ स्क्रीन फ्री टाइम।
मतलब कोई भी घर में स्क्रीन यूज नहीं करेगा, राइट? डिसाइड ऑन स्क्रीन फ्री टाइम, और ये 15 मिनट से शुरू करो, बढ़ाते बढ़ाते 2 घंटे तक ले जाओ, बहुत बढ़िया है। हाँ, सोने वाला टाइम नहीं होना चाहिए, कोई और टाइम चूज करना, दिन का समय, कोई भी स्क्रीन यूज नहीं करेगा उस समय। तो ये शुरुआत कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस है, कई लोग अच्छे से कर रहे हैं, बट शुरुआत 15 मिनट से कीजिए कि ये 15 मिनट निर्धारित है दिन में, इस समय कोई स्क्रीन को हाथ नहीं लगाएगा, कम वट में जो मर्जी हो जाए, फोन भी आ रहा होगा तो भी नहीं उठाएगा, और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाना शुरू कीजिए, एंड दैट वे यू कैन कंट्रोल ऑन योर इंपल्सेस। इंपल्सेस बहुत स्ट्रांग है इसकी। अगर मैंने अभी आपकी कॉल शुरू करने से पहले अगर फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली होगी, तो मेरे दिमाग में पता क्या चलता रहेगा, कितने लाइक आ गए, कितने कमेंट आ गए उस पर। ये बच्चों के साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ समय अब निर्धारित कीजिए घर में, जब हर कोई भी, आप, मैं, हर कोई, राइट, हर बच्चा, हर फैमिली का मेंबर स्क्रीन टाइम पे अपना स्क्रीन फ्री टाइम रखेगा, कोई स्क्रीन यूज नहीं करेगा उस समय। क्लियर? चलो गुड, जितना निर्धारित समय था हमने काफी अच्छी बात की, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी इनपुट्स मिली होंगी, और मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर नायक का भी, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी मुझे भी और आपको भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की। डॉक्टर नायक, on you, if you feel any query is there. That's lovely. I think so many inputs are there for the all type of children. Basically, there are few queries how to handle these small children. Small children means the pre-primary, or you can say the age up to 5 to 6 years. 5-6 साल तक के बच्चों को कैसे पेरेंट्स हैंडल करेंगे, ये कुछ क्वेरीज, कुछ 5 से 6 साल के बच्चों को रादर उल्टा इजी है मैनेज करना, क्योंकि उनके लिए एक्टिविटीज बहुत है, उनके लिए बोर्ड गेम्स बहुत है, उनके लिए इतनी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि उन्हें शायद स्क्रीन की आदत हम डाल रहे हैं, उन्हें स्क्रीन की जरूरत नहीं है। अगर आप उन्हें गेम्स में, बोर्ड गेम्स में इंडल्ज कर देंगे, या उनके लिए डिजाइन कीजिए, पेपर एक्टिविटीज डिजाइन कीजिए। अगर आपके घर में प्रिंटर नहीं है, मैं कहता हूं अगर आप 2 दालें भी मिक्स करके दे देंगे ना उसको अलग अलग करने के लिए, उसे उसमें भी मजा आएगा। 3-4 तरह के पल्सेस को मिक्स कर दीजिए, छोटे छोटे काम दे दीजिए, धनिया करवा लीजिए, दे एंजॉय दैट स्टफ। ये तो हम हैं कि हम उन्हें काम बना के नहीं दे पाते, तो उनको तो मेरे ख्याल से एंगेज करना बहुत ईजी है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि स्क्रीन पे कैसे एंगेज करना है, तो इस समय तक आप कोशिश ये कीजिए कि वो वीडियो गेम्स तो एटलीस्ट मत खेलें स्क्रीन पे। अगर वो कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कोई वीडियो देखना चाहते हैं, इट इज ओके, बट नो गेम्स। अगर आप इस चीज से बचा सकते हैं इस समय, तो वो बहुत बड़ी नहीं करते। अच्छा, ये इसलिए नहीं करते, वो जो फास्ट एक्शन गेम्स जो बोल रहे हैं, वही वीडियो गेम्स, वो अवॉइड किए जाए, रादर बाकी जो मैं जितनी गेम्स आपको मैंने सजेस्ट की हैं, अनब्लॉक, फ्री फ्लो, ये सारे छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं। हिडन ऑब्जेक्ट गेम बहुत अच्छी गेम है। एक लिस्ट दी होती है आपको, एक मेसी रूम में से वो चीजें ढूंढनी है, एक आप ढूंढिए, एक आपका बच्चा ढूंढेगा। दैट वे वो कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी उनकी, क्योंकि जहां जहां वो ध्यान से लगा रहे हैं अपनी आंखों का, ये प्रैक्टिस उनकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव। सर आपका वीडियो अनम्यूट हो गया, आपका वॉइस अनम्यूट हो गया है। हाँ सॉरी, यस यस। एनी एक्टिविटी जो जिसमें आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का माइक्रो ध्यान लग रहा है, वो चीज आपके बच्चे की कंसंट्रेशन को इंप्रूव करेगी। तो प्रेफरेबली उन चीजों में इंडल्ज कीजिए, छोटे छोटे काम करके। सो उसमें छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज में भी कर सकते हैं, राइट? उसी में इंडल्ज कीजिए। वीडियो गेम स्क्रीन से तो दूर रखिए, और अगर स्क्रीन मजबूरी में आपको यूज करनी पड़ रही है, तो कोशिश कीजिए कि वो तेज स्क्रीन मूवमेंट ना हो, उसमें फास्ट मूवमेंट ना हो, स्लो मूविंग हो। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, 3 साल के, 2 साल के, 1.5 साल के, तो कार्टून्स भी जो रेगुलर वो देख रहे हैं, उससे बेहतर भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बने ही बच्चों के लिए हैं, जहां पर एक्टिविटीज धीरे धीरे होती हैं। जैसे आई शेयर विद यू, देयर इज अ चैनल कॉल्ड बेबी टीवी। बेबी टीवी पे जितने प्रोग्राम आएंगे, वो दे कीप इन माइंड कि ये जो बच्चा है, ये छोटा है, इसको बहुत तेज तेज एक्टिविटी नहीं चाहिए, इसको तेज तेज छलांगे नहीं चाहिए, तलवारें नहीं चाहिए, बड़े आराम से धीरे धीरे एक्टिविटीज होती हैं। सीबीज एक चैनल है, सीबीज लिख लीजिए, सीबीज एक अच्छा चैनल है, वो भी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो। तो रादर आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जितना हम देखते हैं ना, छोटा भीम, डोरेमोन, चिंचैन, अगर इसका प्रोग्राम प्लानर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो मिनिमम वॉचिंग एज है उसकी, कम से कम जो एज है, जिस एज में देखना चाहिए उसे, वो 4 साल से ऊपर है, वो 4 साल से कम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें पता ही नहीं है चीज। हमारा 1.5 साल का बच्चा भी जब टीवी की तरफ ध्यान देता है, तो पहले डोरेमोन ही देखता है, वो उसके लिए बना ही नहीं है उस एज के लिए, बिकॉज हमने कभी इस चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। राइट सर, दैट वाज रियली वंडरफुल। आई थिंक सभी पेरेंट्स को आज एटलीस्ट ये पता हो गया है कि स्क्रीन, फास्ट स्क्रीन देखना
कहीं ना कहीं आज के दौर में आज के हमारे बच्चों के दिमाग में ज्यादा प्रेशर डालेगा, ये ध्यान रखें। बाकी हम लोग का कंसर्न था कि सर हमारे अभी जो क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उसमें बच्चे के दिमाग में इफेक्ट होगा, इसमें बच्चे के आंखों में इफेक्ट होगा। ये जो कंसर्न था, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे बच्चे और हम लोग भी अपना मोबाइल्स, अपने लैपटॉप अपना हमेशा चलाते हैं, बड़े होके उसको भी आप यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला गया है, आज ये हम हमेशा बोलते आए हैं कि अगर कोई भी स्क्रीन आप यूज करें, अगर डिस्टेंस उसको प्रॉपरली मेंटेन करें, उसकी लाइटिंग जितना अप्रोप्रिएट होना चाहिए उसको मेंटेन करें, शायद आपको वो दिक्कत नहीं जाएगी। और हमको अवॉइड करना है कि फास्ट टाइप ऑफ मूवीज, फास्ट टाइप ऑफ जो गेम्स आपके हैं, उन बच्चों को थोड़ा दूर में रखें। बाकी ऑल ऑफ अस वी आर गोइंग ऑल फाइन। आज ये सेशन मनीष जी का बहुत बहुत बेहतरीन रहा। बहुत ऐसे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप लोगों को मिले, जो एप्लीकेशन है जैसे कि हमने 4 तरह के फिजिकल एंगेजमेंट, एकेडमिक एंगेजमेंट, एंटरटेनमेंट एंगेजमेंट और एजुकेटिव एंगेजमेंट, जो 4 तरीके से उनको पूरे दिन को डिवाइड करने के लिए बोला गया, इतना बेहतरीन था। आई थिंक यू नीड टू प्लान ऑल ऑफ अस, लेट इट बी अ टीचर और बी अ पेरेंट, क्योंकि हम लोग समझते हैं होम स्कूलिंग। सर मैं हमेशा जिक्र करता था होम स्कूलिंग के बारे में, पेरेंट्स को भी होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। आज जो सर ने ये 4 चीज बताया, कहीं ना कहीं ये होम स्कूलिंग का बात है। पेरेंट्स को भी इसमें अपना टाइम शेड्यूल, अपना प्लानर करना जरूरी है अपने बच्चों के लिए। और अगर आप चारों तरह से ये जो 4 टाइप ऑफ चीजें आप उसको डिवाइड कर लेंगे, एक शेड्यूल बना लेंगे, उसमें इन्वॉल्वमेंट खुद होंगे, शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगी बच्चों को, इस पैंडेमिक में हो या पोस्ट पैंडेमिक में हो, कहीं भी तरह से अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर, आपका इतना बेहतरीन सेशन। शायद मेरे पेरेंट्स आज बहुत खुश होंगे। अगर भविष्य में मुझे तो जरूर आपको इनवाइट करना है पर्सनली आप मेरे स्कूल में, तो चाहे मैं अपने सीधा 1-to-1 फेस टू फेस हमारे पेरेंट्स के साथ हुबहू आपको करवा सकूं, मेरी इनविटेशन आपके लिए है। और मैं बहुत जल्द ये खत्म होने के बाद, बिकॉज मैं एक ट्रेनर हूं और ट्रेनर बिलीव करता हूं कि काउंसलर के हिसाब से आपका सेशन पेरेंट्स के साथ एक बार सभी एज ग्रुप के पेरेंट्स के साथ अलग अलग से कर देने से शायद बहुत फायदा होगा। अपने बच्चे को कैसे इफेक्टिवली इन बच्चों को वो नर्चर करेंगे आगे जाके सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। ये सिर्फ हमने एक एरिया को आज हमने कवर करा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो पेरेंट्स को आपके साथ और कुछ ऐसे काउंसलर के साथ डिस्कस करना है। आई एम वेरी मच थैंकफुल मनीष सर कि आपने मुझे टाइम दिया, और होपफुली वी विल कनेक्ट यू इन द लैटर स्टेज। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। रितिका कैन सर अनम्यूट हो गया है। आपके एंड से हो गया था, पीछे से बंद किया हुआ ना सबको। दैट इज राइट। यस राइट सर। तो सो दैट वाज रियली वंडरफुल सर। मेरे बहुत बहुत आपका आभारी धन्यवाद हूं कि आपने आज ये जो 1 घंटा पूरा मेस्मराइज कर दिया सभी को। बहुत सारे इनपुट्स लेके आज पेरेंट्स जाएंगे, और शायद इट इज गोइंग टू हैव एन वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हाउ टू nurture, or you can say how to guide their own children now in this specific days when the children are absolutely at home. बहुत बहुत धन्यवाद सर। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ टन, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, आपकी प्रेजेंस के लिए थैंक यू। थैंक यू। So that was, dear parents, that was Manish sir, who was a real, because a trainer, a coach, a motivational coach, एक strategist थे, और हमारे उनके साथ जुड़ने से शायद आप लोगों को कुछ पॉजिटिव इनपुट्स जरूर मिला होगा। भविष्य में फिर से एक बार हम कोशिश करेंगे कि फिर से आपके साथ कुछ और सेशंस, कुछ और साइकोलॉजिस्ट, कुछ और स्ट्रेटेजिस्ट के आपके साथ जुड़वाऊं। हमारा यह सेशंस, ये एक ऐसा ही स्कूल है जो पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और टीचर के लिए, तीनों स्टेक होल्डर्स के लिए ये सेशंस करवा रही है और कमिटेड है। हम लोग फिर से परसों एक और सेशन, कल छोड़ के परसों एक और सेशन, वही समय हम अराउंड 5-5:30 में आपको
टेक्स्ट कर दूंगा 5, 4:30, 5 बजे एक और स्पेशल एजुकेटर्स के साथ आपको मुलाकात करके आपको सेशन से जोड़ूंगा, ताकि एक और चीज जैसे कि बच्चों को आपको गाइड करना है, अगर घर बैठे आपको ये सेशन मिलता है, आई बिलीव यू शुड बी हैप्पी फॉर, you should be proud for your school, you should be proud for the place where you have admitted your child to take care of his studies. Thank you very much sir, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़े हुए, फिर हम मिलेंगे परसों, नमस्कार।